Namaste, welcome back to my channel. My name is Ms. Samadip Kaur. So let's do subject EVS of 5th class. Let's read chapter 23 from field to plate. So let's read. Summer vacation in school were to begin from June. Mani was very happy because he had planned to go to his maternal grandparents during vacation. Mani's happiness had no bounds as his maternal grandparents had a joint family which included his Nanaji, Naniji, Mamaji, Mamiji and their children. As per the program, Mani reached his grandparents' house with his mother. After greeting them, Mamaji said to Mani and his mother, "Sister, enjoy yourself. I am going to field on tractor. I have finished the harvesting of rabi crops and now I have to prepare the soil for sowing kharif crops." Mani, who was listening to all this, asked Mamaji, "What are rabi and kharif crops?" समर वेकेशन में स्कूल में छुट्टियां थी तो मनी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जा रहा था, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे। मनी बहुत ही खुश था क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स की जो फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी और उनके बच्चे रहते थे। वो बहुत ही हैप्पी था वहां जाकर। जब वो वहां गया उसने सबको ग्रीट किया, मीन सबको विश किया, नमस्ते किया, सत श्री अकाल किया। तो उसने देखा कि उसके जो मामा जी थे वो ट्रैक्टर पे फील्ड्स में जा रहे थे तो वो सुन रहा था उनकी बातें। तो उन्होंने बोला कि रबी क्रॉप्स हैं जो उनको हार्वेस्ट करना है, मीन्स उनको काटना है और फिर सॉइल को प्रिपेयर करना है खारिफ क्रॉप्स के लिए। मनी सुन रहा था, उसने पूछा रबी और खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं। नाउ मामा जी, son, the crops like wheat, mustard, sarson and the chickpeas, chana, which are sown in the month of October and harvested in the month of April, are rabi crops, and crops sown in the month of June, July and harvested in September, October are known as kharif crops. Example, paddy, राइस, मेज, कॉर्न। मामा जी ने बताया जैसे कि क्रॉप्स वीट, कनक, मस्टर्ड, सरसों और चिकपीस जैसे चना वो सब अक्टूबर के मंथ में उगती हैं और उनको अप्रैल में काट लिया जाता है, उनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। और जो क्रॉप्स की जून और जुलाई के मंथ में हार्वेस्ट होती हैं सितंबर में, उनको खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं। पैडी, राइस, मेज, कॉर्न ये इनकी एग्जांपल्स हैं जिनको खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं। एक्टिविटी को स्किप करते हैं। अभी है मनी, मामा जी, आई विल ऑल्सो अकम्पनी यू टू सी हाउ द सीड्स ऑफ क्रॉप आर सोन। मामा जी, ऑलराइट, लेट अस गो टू द फील्ड, सिट ऑन द ट्रैक्टर। नाना जी वॉज वेरी हैप्पी टू सी मनी, ही वॉज ऑलरेडी इन फील्ड्स इंस्ट्रक्टिंग द वर्कर्स अबाउट द वर्क एंड एट द सेम टाइम ही वॉज टेकिंग द बुलक्स टू ट्यूबवेल थ्रो। मनी ने बोला मैं भी साथ ही जाऊंगा, तो मामा जी ने बोला आप भी ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, हम जाते हैं साथ में। नाना जी पहले ही खेत में थे क्योंकि वो वहाँ वर्कर्स को बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। फिर क्या हुआ था, नाना जी उसी टाइम पे बुलक्स को लेकर के to drink water, Mani greeted his Nanaji and curiously told him that he would also see the process of sowing seeds in the field. मनी ने नाना जी को ग्रीट किया, नमस्ते किया और फिर बोला कि वो भी यहाँ पे सीखेगा कि कैसे सीड्स को उगाया जाता है। मामा जी, I am going to plough fields with tractor. You sit with your Nana ji and satisfy your curiosity. मामा जी ने कहा मैं फील्ड्स को प्लव करने जा रहा हूँ, राइट मीन्स हल चलाने जा रहा हूँ, तो आप अपने नाना जी के पास बैठकर उनसे सारे क्वेश्चंस पूछिए। Nanaji, there had been a time when we used to plough the fields with bullocks-driven ploughs. Now, because tractors are being used in fields, bullocks are only used to carry fodder or manure. Early bullocks were reared by farmers as their own sons. They took good care of them so that the strong bulls could help him in fields. But since the tubewell and tractors came into being, agriculture works have changed. Works which were completed in months are now completed within a few days. Now, the plough is attached with tractor and the field is ploughed with the help of rollers. Suhaga, the soil lumps are broken and with the leveler Graha, the soil is leveled. Then the field is divided into compartments, Kyara, and manure is added in the soil. This is how the field is ready for new crop. नाना जी ने बताया कि पुराने टाइम पे कैसे होता था, बुलक्स को मीन्स बैल को लेकर फिर प्लव किया जाता था खेतों में। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं जिससे काम बहुत ही आसान हो चुका है। ट्यूबवेल के लिए यूज किया जाता है, ट्रैक्टर्स को यूज किया जाता है, नई नई चीजें यूज की जाती हैं आजकल। पुराने टाइम पे ऐसे होता था कि बुलक्स को लेके जाते थे पानी निकालने के लिए। आजकल ट्रैक्टर को यूज करके प्लव किया जाता है, रोल किया जाता है, सुहागा जिसको बोलते हैं रोलर, और जिससे कि लंप्स होते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं वो टूट जाते हैं। फिर लेवल किया जाता है लेवलर यूज करके, मीन्स क्राहा यूज करके, और फिर उनको कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है जिसको क्यारा बोलते हैं, और फिर उसमें मन्योर ऐड किया जाता है, मीन्स उसमें खाद वगैरह डाली जाती है। ऐसे क्रॉप के लिए उसको रेडी किया जाता है फील्ड को। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट, how were the fields ploughed in earlier times? So answer is the fields were ploughed using bullocks.
Question 2. How are the fields prepared for sowing nowadays? So answer is nowadays fields are ploughed using tractors, then roller and level are used. Field is divided into parts and manure is added. Money. Nanaji, why are the workers filling the compartment Kiara with so much water? Nanaji, your mama ji is preparing field to sow paddy crop. The field should have enough water standing in it to sow the paddy crop. First, the seeds are sown to get saplings. The saplings are then planted into water-filled compartment of the field at equal distance. But seeds of wheat are directly sown with the help of seed trail. Wheat crop does not require excess water. Money ने पूछा कि कंपार्टमेंट में इतना ज़्यादा पानी क्यों डाला जा रहा है, तो नाना जी ने बताया कि मामा जी प्रिपेयर कर रहे हैं, पैडी क्रॉप को उगाने की तैयारी कर रहे हैं। जो क्रॉप होती है पैडी क्रॉप, जिसको चावल बोलते हैं, उनकी पहले पनीरी उगाई जाती है, उसके बाद उसको प्लांट किया जाता है इक्वल डिस्टेंस पे। जो वीट क्रॉप होती है, कनक होती है, उसको डायरेक्टली ड्रिल किया जाता है, डायरेक्टली उसको बीजा जाता है, उसके लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। लेकिन पैडी क्रॉप ऐसी होती है जिसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है हमें। Earlier, when the wells were the only source of irrigation, the crops like paddy were not sown. Only the crops like jowar, bajra, maize, etc. were sown, as these crops do not require much water. पुराने टाइम पे क्या होता था, ऐसी फसलें उगाई ही नहीं जाती थी जैसे कि पैडी, क्योंकि उस टाइम पे पानी की कमी होती थी या फिर पानी को निकालने के सोर्सेज कम थे, इरिगेशन के सोर्सेज कम थे, और उस टाइम पे सिर्फ ज्वार, बाजरा, मेज वगैरह ही ज्यादा उगाए जाते थे जिनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। सो क्वेश्चन 3, नेम द अदर क्रॉप्स व्हिच आर सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। सो आंसर इज टोमेटो एंड ब्रिंजल। क्वेश्चन 4, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स व्हिच आर सोन डायरेक्टली विद सीड्स। सो आंसर इज व्हीट, पीस, कैरेट, रेडिश एंड सनफ्लावर। Next question, 5th, write down the names of crops which require excessive water to grow. So answer is paddy. Next, let us read. So here, Mani, Nanaji, is the crop ready after sowing? उगाने के बाद क्या फसल रेडी हो जाती है? तो नाना जी ने बताया, no son, not so soon after sowing the crop. It is irrigated from time to time because the plant need water to grow. Look at the tube well. Water is rushing out and flowing into the fields. See, there is one more well which has now dried up. There had been a time when this well irrigated the fields. आप देख सकते हो कि उसको कितना कुछ चाहिए होता है, उसको पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, उसको टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है। कैसे दिया जाता है? ट्यूबवेल को यूज करके। पुराने टाइम पे ऐसे वेल यूज किए जाते थे, पर आजकल इसमें पानी नहीं है, ये ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं। पिक्चर्स में देखते रहना। नेक्स्ट है मनी, नाना जी, वेयर हैज इट वाटर गॉन? ये पानी कहाँ चला गया? नाना जी बता रहे हैं अब, underground water level is decreasing day by day, so it has dried up. Your mama ji has to dig tube well, bore deeper and deeper every year. It is very expensive and time consuming task. This year we had to dig a deeper bore at home too for supplying water to the overhead tanks. नाना जी ने बताया कि वाटर का जो लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डाउन जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ हो रहा है, जैसे कि पैडी जैसी फसल है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी निकाला जाता है। इनका लेवल डाउन जाने की वजह से हर साल जो ट्यूबवेल है उसको डीपर करना पड़ता है, उनको और गहरा करना पड़ता है ताकि पानी निकल सके। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई आर क्रॉप्स इरिगेटेड? सो आंसर इज क्रॉप्स आर इरिगेटेड टू ग्रो देम प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन आल्सो, फाइंड देम आउट। सो आंसर इज स्प्रिंकलिंग, शावरिंग, कैनल्स एंड रेन वाटर। नेक्स्ट Question 8, pictures of some agriculture tools are given below with their names. Each tool is used for some agriculture work. Write about it. You can see the picture. First, tractor, plough, next seed drill and leveler. So let's write here. Tractor is used to prepare the field. Plough is used to plough the field. Sohaga, roller is used to break lumps. Leveler, it is used to level the field. Next, seed drill, it is used to sow the seeds. Next, Mani was still talking to his Nana ji when his Mama ji came back to relax for a while. He drank water from the tube well, washed his face and asked Mani, are you now satisfied with the knowledge about agriculture? मनी अब बातें कर रहा था नाना जी से, और मामा जी जब वापस आए रिलैक्स करने के लिए, उन्होंने ट्यूबवेल से पानी पिया, अपना हाथ मुंह धोया, और फिर मनी से पूछा कि अब वो सेटिस्फाइड है जो भी उसने नॉलेज ली एग्रीकल्चर के बारे में। नाना जी, ओके माय सन, नाउ बोथ ऑफ यू कैरी ऑन द डिस्कशन, आई विल रेस्ट फॉर सम टाइम। नाना जी ने कहा अब आप दोनों डिस्कशन करो, मैं रेस्ट करता हूँ। Mani, Mama ji, what is that man doing in the other field with a bag on his back and a gun-like thing in his hand? Mama ji, he is spraying an insecticide on the crop. It will kill the insects which attack the growing crops. Some other plants like grass, bathu, chalai, gulisita, etc. also grow along with crop, which are called weeds. So weedicides are also sprayed to remove them to replenish the mineral
of the soil. Some fertilizers are also added to soil after irrigation, but all these things have to be used carefully. अब मनी ने पूछा कि दूसरे फील्ड में वो आदमी क्या कर रहा है जिसकी बैग के ऊपर एक बैग जैसा कुछ है और उसके हाथ में एक गन जैसा कुछ है। तो मामा जी ने बताया वो स्प्रे कर रहा है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, जो इंसेक्ट फसलों को खराब करते हैं। उन्होंने बताया कुछ और प्लांट्स भी उग जाते हैं जिनको वीड्स बोला जाता है, उनको खत्म करने के लिए वीडसाइड्स यूज किए जाते हैं और फिर सॉइल में फिर से मिनरल्स पाने के लिए उनमें फर्टिलाइजर्स ऐड की जाती हैं और फिर उनको इरिगेशन किया जाता है जिससे कि वो प्रॉपरली मिक्स हो सके मिट्टी में। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स एडिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कैसे ऐड किया जाता है, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को कैसे स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट, मनी, मामा जी, इफ दीज केमिकल्स किल द इंसेक्ट्स एंड वीड्स डू दे नॉट हार्म अस व्हेन वी कंज्यूम देम। अगर ये सारे केमिकल्स इंसेक्ट और वीड्स को मारते हैं, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है जो हम इन्हें कंज्यूम करते हैं। मामा जी विद द डीप साई, यस माय सन, द सेम थिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट टू द फार्मर्स दैट द इंसेक्टिसाइड्स, वीडसाइड्स एंड फर्टिलाइजर व्हिच आर बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड आर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स. So the agriculture scientists have suggested to switch over to organic farming. In this type of farming, artificial or poisonous substances are not used. They are not only expensive but also harmful for both our health and environment. मामा जी ने बताया यस, यही बात एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने बताई थी फार्मर्स को कि जो इंसेक्टिसाइड और वीडसाइड और फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको ज़्यादा यूज़ करने से ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि हम इनको यूज़ करते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके, ज़्यादा फसल उग सके, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, हमें इनको नहीं ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए जिसमें कि कोई भी आर्टिफिशियल या पॉइजनस सब्सटेंस यूज़ नहीं किए जाते, जिनके लिए हम ज़्यादा खर्चा करते हैं, जिनको पाने के लिए ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, हमारी हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट वी हैव fill in the blanks. So let's fill. First, to save the crops from insects, dash are sprayed insecticides. Second, to save the crops from weeds, dash are sprayed weedicides. Third, to replenish the minerals in the soil, dash are added fertilizer. Fourth, along with the crops, certain dash are grow weeds. Fifth, insecticides are dash for human health. Answer is harmful. Now next, organic farming. In organic farming, manure, compost and vermicompost is used instead of chemical fertilizer. Mixture of cow's urine, saccharin and basin is used to increase the nutritious elements in soil. Our solution is made by grinding neem leaves, garlic, green chilies and tobacco leaves to spray as an insecticide. Buttermilk and alum is used as a fungicide. Weeds are plucked out with hand, khurpa or harrow. This in organic farming, all the natural substances are used which are not harmful to both humans and environment. Organic farming ऐसी होती है जिसमें हम कंपोस्ट यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ नहीं करते हैं। इसमें काउ का जो यूरिन होता है उसको यूज़ करते हैं, जैगरी और बेसन को यूज़ करते हैं जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। और इसके अलावा हम एक लिक्विड सोल्यूशन बनाते हैं जो बनता है नीम लीव से, गार्लिक, ग्रीन चिलीज एंड तंबाकू के लीव से, उनको हम एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। और हम बटर मिल्क और एलम भी यूज़ करते हैं फंगिसाइड्स के लिए। वीड्स को हम हाथ से निकाल सकते हैं, खुरपा और हारों से निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ना ही ह्यूमंस के लिए ना ही एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट यू कैन सी द पिक्चर्स कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट कौन सी होती है, कैसे बनती है, और वर्मी कंपोस्ट कैसे बनती है। ये गंडोआ होता है इनको यूज़ करके, राइट। मनी, देन वी शुड ऑल्सो प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ फार्मिंग। हमें भी ऐसी ही फार्मिंग करनी चाहिए। मनी ने बोला मामा जी येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी वुड नाउ स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। दिस टाइम वी आर गोइंग टू सो राइस क्रॉप ओनली इन स्मॉल एरिया एज द वाटर टेबल इज गोइंग डाउन डे बाई डे एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो राइजिंग। इफ द अंडरग्राउंड वाटर इज फिनिश्ड द सॉइल ऑफ पंजाब वुड बिकम बैड। मामा जी ने बताया सही बात है, हम भी नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करेंगे। इस बार हम थोड़े से एरिया में राइस क्रॉप उगा रहे हैं क्योंकि पानी का लेवल डाउन जा रहा है, हमें पता है, इसीलिए ग्राउंड वाटर फिनिश ना हो सके, हमें कम ऐसी चीज़ें उगानी चाहिए, नहीं तो पंजाब की ज़मीन बंजर हो जाएगी। मनी, मामा जी व्हाट विल यू डू आफ्टर द क्रॉप इज रेडी। जब क्रॉप रेडी हो जाएगी तब आप क्या करोगे। मामा जी सन, व्हेन द क्रॉप इज रिपन्ड एंड रेडी फॉर हार्वेस्टिंग वी कट इट विद द सिकल। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज गैदर्ड एंड टाइड इन stacks. Then with the help of thresher, greens and straw, a separator, nowadays combined harvesters have made harvesting much easier. These combined harvesters cut the crop at the same time. Grains are also separated. In old times
जो नाना जी यूज टू कट द क्रॉप्स। मामा जी ने बताया जब क्रॉप पक जाएगी हम उसको काट लेंगे, काट के उनको इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके फिर उनको थ्रेश करेंगे ग्रेन्स को, और फिर उनको अलग अलग कर लेंगे, उसमें से स्ट्रॉ अलग कर देंगे, ग्रेन्स अलग कर देंगे। आजकल क्या होता है हमारे पास कंबाइंस होती हैं जिनको हम यूज करके आसानी से काम कर सकते हैं। कंबाइंस क्या करती हैं, क्रॉप्स को काटती भी हैं और ग्रेन्स को वो सेपरेट भी कर देती हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था, नाना जी इनको कैसे काटते थे वो अब हमें पढ़ रहे हैं। देन स्टेक्स वर मेड, स्टेक्स बनाए जाते थे उनको काट के। आप देख सकते हो सिक्कल क्या होता है, दाती। ये जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है ना काटने के लिए फसल को, इसको बोलते हैं सिक्कल। और इधर जो लेफ्ट में है ये है कंबाइन, कैसे हम ग्रेन्स प्राप्त करते हैं सेपरेटेड, राइट। रिपन व्हीट क्रॉप है ये। नेक्स्ट, these stakes were spread on a hard surface in the village and then with the help of bullocks the grains were separated. This method would take a lot of time. Some amount of grain is kept for personal use and rest is sold in the market. In this way expenditure incurred upon crop is met with and farmer also saves money for his household needs. When farmer harvests this crop successfully he become home singing, dancing and enjoying. This day is celebrated as Baisakhi. You must have seen Baisakhi Mela. The atmosphere of Punjab is very happy on this day. तब क्या किया जाता था, फसलों को काट के एक हार्ड सरफेस के ऊपर डाल दिया जाता था, फिर बुलक की हेल्प से उनको सेपरेट किया जाता था। ये बहुत ही टाइम लेता था ये प्रोसेस। उस टाइम पे क्या होता था, कुछ ग्रेन्स घर पे रखे जाते थे जिनको यूज करना होता था और बाकी के बेच दिए जाते थे राइट मार्केट में, ताकि कुछ पैसे आ सके। और किसान बहुत हैप्पी होते थे इस दिन पे क्योंकि क्रॉप सक्सेसफुली सेल हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो वो सिंगिंग और डांसिंग करते हुए एंजॉय करते थे और एक त्यौहार एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, जिसको बैसाखी बोला जाता है। बैसाखी का मेला होता है पंजाब में और इस दिन पंजाब बहुत ही हैप्पी होता है, पंजाब के सारे लोग। Next, 10. Write down the process of harvesting and thrashing. So answer is when the crop is ripened, it is cut using sickle. This crop is filled in stacks. Thresher is used to get grains. Next question. How were grains separated from husk in earlier times? So answer, after harvesting, the stakes were spread on hard surface. Then with the help of bullocks, the grains were separated. Next question, how has combined harvesters made the work easier? So answer is the combines cut the crops and at the same time grains are also separated. Next, money. Yes mama ji, one day Baisakhi was celebrated in our school and one student sang a poem written by Dhani Ram Chatrik. So poem was, ਤੋੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਲੰਬੜਾ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਗ ਝੱਗਾ ਚਾਦਰਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾ ਕੇ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਰ ਵੰਜਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ ਮਾਰਦਾ ਤਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। So it was the poem. So here you can see the picture, Baisakhi celebration, talking to each other and singing Baisakhi songs. Mama ji and Mani came back. As soon as they reached home, Nani ji asked them to wash their hands and have food. Mama ji told Mani that chapatis were made from the same wheat grains about which they had been talking. अब जब वो घर पे आ गई तो नानी जी ने उनको हाथ मुंह धोने के लिए कहा और फिर बोला कि खाना खा लें। तो मामा जी ने बताया जो चपाती हम खाएंगे ये भी उसी ग्रेन से बनती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मनी, मामा जी, हाउ कैन वी गेट राउंड चपाती फ्रॉम व्हीट ग्रेन? व्हीट ग्रेन से हमें राउंड चपाती कैसे मिलती है? मामा जी, ओनली योर नानी जी कैन एक्सप्लेन दिस। मामा जी ने बताया आपकी नानी जी ही आपको एक्सप्लेन कर सकती हैं। नानी जी, माई सन, योर मामा जी एंड नाना जी वर्क हार्ड इन द फील्ड टू ब्रिंग द ग्रेन्स होम। फ्रॉम दीज ग्रेन्स आटा, व्हीट फ्लोर, दलिया, Suji, maida are obtained to cook many dishes. For example, halwa and panjiri are prepared from flour. Halwa and kheer are prepared from suji, puri and sewaiyan are prepared from maida. Similarly, we get popcorns from maize seeds and chapati from maize flour, which is fondly eaten in winter with sarson ka saag. Pulao, sweet rice and kheer are also cooked from rice. Crops are brought home, dried and stored in drums. Wheat flour is obtained by grinding the wheat grain in grinding machine. Earlier, when the electric grinding machines were not available, wheat was grinded with manual chuckies to get flour. So अब क्या था, नानी जी ने बताया जब खेत में नाना जी और मामा जी आपके काम करके आते हैं तो जो भी ग्रेन होता है जैसे कि आटा जिसको हम फ्लोर बोलते हैं और दलिया, ऐसी चीज़ें ऑब्टेन होती हैं सारी जिनको हम कुक करके डिशेस बनाते हैं। जैसे कि हलवा भी आटे से बनता है, पंजीरी बनती है फ्लोर से, हलवा बनता है, खीर बनती है राइस से, पूरियाँ बनती हैं, सेवइयाँ बनती हैं, मैदे से बनती हैं, राइट। और जो मक्की होती है उससे हम चपाती भी बनाते हैं, पॉपकॉर्न भी बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो मकई की रोटी है उसको हम सरसों के साथ खाते हैं। पुलाव, स्वीट राइस, खीर, ये सारी चीज़ें राइस से बनती हैं। इन क्रोप्स को हम ड्राई करके ड्रम्स में स्टोर करके रखते हैं। व्हीट फ्लोर को भी
हम ऐसे ही ग्राइंड करके प्राप्त करते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं उनको ग्राइंड कर लिया जाता है ग्राइंडिंग मशीन में। पुराने टाइम पे जब ग्राइंडिंग मशीन नहीं होती थी तब इनको ग्राइंड किया जाता था चक्कीस में। This flour is kneaded to make dough. Round balls are made and flattened with rolling pin beलन to get round chapatis which are cooked on hot plate tawa. Finally, it is served in plate. It is flavorous. जो आटा होता था उसको नीड कर लिया जाता था, मीन्स गूंथ लिया जाता था, उसको बना लिया जाता था। उसके बाद उसके राउंड बोल जिसको पेड़ा बोलते हैं वो बनाया जाता था। फिर उसको बेलन को यूज करके, जिसको बेलन बोलते हैं, उसको यूज करके उनको रोल गोल गोल चपाती बनाई जाती है। फिर उसको तवे पे डाल दिया जाता है जिसको हॉट प्लेट बोलते हैं। फिर उसको सर्व किया जाता था खाने के लिए। Mani, wow, this is really a hard work. Nani ji, only that much food should be taken in plate which we can eat. We should not waste food by leaving it in plate. मनी ने बोला हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही फूड लेना चाहिए जितना हमें खाना हो। आप पिक्चर भी देखते रहना कैसे रोटी बनती है, राइट? मामा जी, यस माय सन, यू आर वेरी वाइज। इफ एवरीवन स्टॉप वेस्टिंग फूड्स देन इट कैन बी मेड अवेलेबल टू एंटायर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। मामा जी ने बताया आप तो बहुत ही समझदार हो, अगर सब ऐसा ही सोचें, ऐसा ही करें, फूड वेस्ट ना करें तो सबको फूड मिल सकता है। जो लोग भूखे सोते हैं उनको भी फूड मिल सकता है, पूरी पॉपुलेशन को, राइट? Now things to remember: wheat, mustard and chickpeas are rabi crops. Cotton, paddy, maize and bajra are kharif crops. Farming can be done today with the help of modern tools. Instead of chemical manure, organic manure should be used to destroy weeds and insects. Poison should not be used. So let's do questions. Question 13. Which dishes are made from wheat flour in your house? So answer is halwa, sevaiya, dalia, panjiri, puri, etc. Now next question 14. Apart from wheat flour, which other flours are used to make chapati and in which season? So answer is corn flour, maize flour, gram flour, and we use them in winter season. Next question 15. List a few special dishes which are cooked on special occasions in your house. So answer is on Sangran, halwa, rice on Basant, sarson ka saag on Lodi, and kheer puri on Diwali and Ashtami. Question 16. Which festival is related with crop harvesting in Punjab? So Baisakhi is related with crop harvesting in Punjab. On this day farmers are very happy and celebrated this as festival. Next question. Which dishes are made from rice? So answer is kheer, idli, poha, dosa. So we have done this lesson. Thank you so much for watching.